Hey everyone, this is Shubham, a student of Professional Academy, and I welcome you all here. Now, I'd like to introduce you here for today's interaction, Mr. Rajesh Pratap. He's the director of Professional Academy and an alumni of IIM Lucknow. And today's session is about the cat cracker. We are here to congratulate Mr. Adarsh here for cracking cat, and we would like to interact with him that how he has done and how he has achieved all these things, right? So I'd like to ask Adarsh that kindly tell us that what are the things that you have to do for cracking all these kind of examinations. So kindly Adarsh, please tell us about the same. Thank you, Subham. I just like to thank you and sir for this kind of gesture for me. But I would like to let the CAT aspirants to know that in cracking CAT examination, one of the major thing is like consistency, and consistency matters. You need to be consistent throughout your preparation. Like in this type of preparation, they don't need to work for to study for 4 to 5 hours a day. If you are able to gather only 1 hour a day, that is sufficient. But the thing matter is you need to take 1 hour throughout your preparation, throughout the year. This is not kind of preparation like if you give one day 7 hours and other 3 to 4 days a blank, a zero. This is not tolerable in kind of CAT preparation. And especially I want to thank Rajesh sir for overall his mentorship and the coaching and the preparation which he given me throughout my overall preparation, and especially the mock part which helps me a lot, because mock helps you to know in what kind of position you are, at what type of what's your preparation percentage, either you achieving more or either is you achieving less. And more or less I also want to know aspirant about that it's only 60% journey would be completed if you scored a good percentile in CAT. There comes 40% journey, which is called a type of college shortlisting, college selection, interview, and many of other process like VAT, like GD, and all this type. And I was very much of worried. Then I personally thank again Rajesh sir that he helped me. He helped me a lot through this, and he also taken a lot of mocks interview, a lot of mocks GD. Many of the we have given many of VAT VAT test, like VAT essays. It's kind of writing ability test, and Rajesh sir has given a lot of topics over that. And in one of my interview at Great Lakes, a topic which Rajesh sir has given, that collides, and this gave me added advantage over that selection process. Now I would like to invite Rajesh sir for more discussion. Thank you, sir. Totally based on the personal desires, which college he has to select, and he finally selected this college, that is called MD Agro. You know very well, for cracking the CAT examination, okay, I am telling about the beginners. First with the conceptual means it is in mathematics more than 50% part is the question of non-CAT and CAT questions, okay. Also the based on the logical questions, he or she has to improve by the studying of different newspapers that are based on the editorial for the improving of the questions, solving the question of VA, vulnerability part, okay, and also the for enhancing the knowledge for cracking the PI and GT. Now I would like to ask others that as you have been selected in a lot of IIMs, so why have you only selected MDI Gurgaon? Actually, I have been selected in IIM Raipur, Bodh Gaya, Sirmaur, Jammu, and many of. I also been selected in BHU, Great Lakes, and Yes, yes, sir. It was my convert. Yes, sir.
But if you talk about the ranking part, which is given by NIRF, National, I think it's kind of ranking framework That's for by the government of India. yeah, by the Ministry of Education, yeah. Government of India. Government of Right, sir. Right, sir. And if you go about the ranking part, then MDI ranks in top 10 B school in India, and I had just compared with those ranking and those ROI part, return of investment part, over which I and Rajesh sir have discussed more, that you got a good kind of exposure, and also there is a personal interest of that location part. MDI is situated in Gurgaon, which is kind of corporate hub, and in this type of MBA college, more of the case studies matters, and MDI has I think MDI will give me such kind of exposure, corporate exposure to me, which was the main part, as we have decided over BHU IIM Raipur and MDI Gurgaon. That was only the call. Thank you. Now my next question for him is that right now what happens is, nowadays when the students go for searching kind of institutes, right, there are a lot of institutes in every cities, but the question is that why you prefer a particular institute, why professional academy? There is some or the other hint you have to give to the students in the selection of the institutes. That is the main thing, because whatever happens is students go for a 1 or 2 day trial or a demo period. But I do not think, according to me, that a 2 day or a 1 day trial period may tell you about an institute. So what are the things that a student may judge while he or she goes for a demo and he can select the best institute ever? For this, I would like to let you know that I got reference of Rajesh sir Professional Academy from one of my colleague and one of my childhood friend, Ankit Raj, and he Ankita, yeah. at present he is working Yeah, in yes, sir. Microsoft and pass out from Accelerate. Yeah, okay. yeah, yes, sir. India's highest package, Yes, sir. 78 lakhs. Okay. Yes, sir, yes, That sir. can be good. He is my Okay. childhood friend, Your childhood friend, okay. and he just referred me. He has been the student of the Professor Academy. Yeah. He just referred me that Adarsh, if you are preparing for CAT and if you want to crack CAT, then go and discuss with Rajesh sir. Then he told me some benefits of joining Professional Academy. So I just come to Rajesh sir and meet him, and when I personally meet him, I got a kind of support like Rajesh sir has always supported in the issues which we get while the overall journey of preparation, because you know a person life can't be on simple point, and this part majorly attracts me, because I have gone through many of the CAT preparation college. I have also searched for many of the online platform, but in online platform the part of peer learning lacks, and these type of MBA colleges, even a person goes to MBA college, then why he is join MBA college? More of the learning from peers, because in type of postgraduate course, peer learning matters a lot. Peer learnings matter a lot, and here in professional learning we have a good environment of peer learning. If you I have like earlier told you that in professional academy I had got opportunity of group discussion, I have got opportunity of mock PIs, then students or aspirants, we have such kind of good student and aspirant who make this environment a good for having a such kind of good group discussion. So this type of added advantage which only Professional Academy has given, and none of online platforms are able to give such kind of peer learning. If you talk about more or less of CAT preparation or more or less of interview preparation, GD preparation or VAT preparation, so I decided to join Professional Academy, and I haven't taken a demo. After discussion with Rajesh sir, I have not gone for the demo. I was totally satisfied with the discussion, because he told me the pros and cons of mine, and that was the measure. And this can only happen when a person interact with to you with face to face, not in online media. This matters for me a lot. Thank you.
Thank you, Adarsh. Now we can assume from this thing that Mr. Rajesh Pratap, whatever he is, that you try to say that he is the person who interacts directly. In most of the institutes, if you will go, the director does not meet you at all, right? But he interacted with you personally. He took personal interest in you, and thanks a lot to Mr. Rajesh sir that he took a personal interest in the students. And this is the thing, right, that a student needs from the teacher, that the teacher interacts with him personally, and that is the thing that enhances the skills of the student, right? The most important factor, राइट सबसे बड़ी चीज़ होती है ये, दैट अगर टीचर आपसे पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, आपकी कमियों को बताते हैं, दैट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स इन यू, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं और साथ ही साथ हमें बेहतर बनाती हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमें कमी हमारी जल्दी कोई बताता नहीं है, हमें बुरा लग जाएगा, बट ही इज़ द पर्सन जो कि आपके अंदर आपकी कमियों को ढूंढ करके आपको सही करते हैं। सो अब मैं राजेश सर से बोलना चाहूँगा कि सर आप हमें ये बताएं कि आखिर जब बच्चे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं कि बच्चे जो है बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल होते हैं। मैंने देखा है काफ़ी बच्चे जो है वो कैट क्रैक कर रहे हैं, है ना, कैट है, MBA में बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, GMAT क्रैक कर रहे हैं, CMAT क्रैक कर रहे हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स कि आप बच्चों को ऐसा बताते हैं दैट दे आर इजीली एबल टू क्रैक दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स? देखिए हमारी स्टार्टिंग से इट इज़ रनिंग सिंस 2004 से ही हमने एक मेथोलॉजी को ऑप्ट किया कि पहले हम लोगों को बचपन से, मैंने भी पढ़ा है कि फर्स्ट यू हैव टू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स। कोई भी टॉपिक मैं जब 10th में पढ़ रहा था तो उस समय मुझे बिहार टेक्स्ट बुक की एक बुक्स थी, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ, उसी से हम फॉलो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। उसके बाद मेरे टीचर्स भारती भवन की एक बुक्स मैथ पढ़ाते थे, वो ख़त्म होने के बाद लालजी प्रसाद की बुक्स करते थे। तो दैट टाइम्स वी आर नॉट स्टडिंग फॉर हाउ टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, हाउ टू इम्प्रूव द नॉलेज। गर्ल्स है वैष्णवी, सी हैड स्टडी इन DPS RK पुरम, मिरिंडा हाउस में वो पढ़ी थी और उनके फादर DIG हैं, तो उन्होंने उनको कोई एडवाइस किया, सी हैड कम एट ईयर्स फॉर स्टडिंग। तो उनका रिव्यू भी है उस गर्ल्स की। वो जब यहाँ से UPSC के लिए पढ़ने के लिए आई तो मैंने कहा आई एम नॉट टीचर फॉर द UPSC, आई एम नॉट टीचर फॉर UPSC बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग ऑफ CSAT स्टूडेंट, बट सी हैड टोल्ड इट इज़ अ सिलेबस, सी हैड टेकन द क्लासेज एट ईयर्स और सी हैड क्रैक्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द UPSC एग्जामिनेशन, ठीक है। तो और उनकी रिव्यू होगी इसी साल की है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करता हूँ। कॉन्सेप्ट पे क्या होता है, आफ्टर दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवेयर। जैसे CGLs है, बैंक PO, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द चाइल्ड, वो क्वेश्चन आसान, इसीलिए मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट जॉब में भी आते हैं तो आसानी से बैंक PO ऐसे CGL क्रैक करते भी। 500 से ज़्यादा तो फेसबुक पे फॉलोअर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग जगह सक्सेस हैं। सेकंड, कैट की क्वेश्चन थोड़ा टफर क्वेश्चन होती है बैंक PO से, उनके लॉजिकल स्किल कैट में बहुत ज़रूरत होता है, लेकिन पहले तो फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर होगा तभी तो हम कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट स्टूडेंट इज सॉल्विंग द लेवल 1 क्वेश्चन, दिस इज द टोटली बेस्ड ऑन नॉन कैट क्वेश्चन। नॉन कैट है मैट, CMAT, इनका प्रीवियस क्वेश्चन इंक्लूडिंग करेंट जो ईयर का आता है वो सभी क्वेश्चन को भी क्लास में हम लोग डिस्कशन करें। आफ्टर दैट लेवल 2 क्वेश्चन, level 2 it means only CAT question. So conceptual question of the foundation, after that more than 80% question there will no problem to solve the questions, उनको डिस्कशन कराते हैं। दूसरी चीज़, हम हमेशा इंडिविजुअली अभी भी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में बहुत कम ही टीचर होंगे हमारे जैसे जो इतने पुराने टीचर्स होंगे जो बच्चे के साथ 2 घंटा बैठ सकते हैं, एक बच्चे के साथ 1 घंटे बैठ सकते हैं उनके बेंच पे। अभी भी हम लोग करंट में अभी IP-MET की नेहा कर रही है और बच्चे लोग इतने COT जो स्मार्ट बच्चे लोग और बच्चे लोग, मैं उनके साथ 2 घंटा बैठ के क्या करता हूँ, पढ़ाने लगता हूँ उसको। और डाउट है ज़्यादा 4-4 घंटे 5-5 घंटे 5-5 यही साथ में 4-4 घंटे इनके साथ बैठ आ रहे हैं और बैठ रहे हैं, कैसे नहीं हो। तो देखो आप जैसे इस लेवल पे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चे के साथ नहीं काम करते, और ये तभी संभव हो सकता है जब ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं, जब छोटा बैचेज चलती है। ऑफलाइन क्लासेज में इंटरेक्शन, आज मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेज में बच्चे लोगों की अपनी होती है, तो वहाँ एक इंटरेक्शन है। आप कॉपी कैसे देख सकते हैं बच्चे को, बच्चे क्या कर रहे हैं, बट ऑफलाइन क्लासेज में तो हम आसानी से देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने क्या लर्न किया। आई कैन आस्क द क्रॉस क्वेश्चन टू हिम और हर कि भाई बताओ, स्पेशली GD part sir, GD part. where we manage to get seating arrangement in proper way, जी, where students are sitting in this like face to face, so that part matters sir. तो लॉजिकली इस तरह से तैयार करते हैं। और थैंक्स ईश्वर को
कि अभी 6000 प्लस हमारे क्रैकर स्टूडेंट हैं और इंडिया एंड अब्रॉड में वर्क करते हैं, और सभी लोग ग्रेटफुल हमेशा हम देखते हैं बच्चे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और कहते हैं सर, कुछ बच्चे तो बताते हैं कि अभी जो प्रमोशंस होती है, किसी का पैकेज 36 लाख का है और 48 लाख जाना है, तो वहाँ पे क्या हो, एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, थोड़ी क्वांट का रीजनिंग। तो बोलते हैं कि मैं आपके बुक्स के रखा हूँ, कॉपी रखा हूँ, पलटता हूँ, ऐसे देखता हूँ क्या है पढ़ना, कौन कौन सा टॉपिक है उसको करते हैं, और आई कैन डू द बेस्ट परफॉर्मेंस, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन देयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, व्हेन आई अपीयर्ड द एग्जामिनेशन दैट वाज द सॉल्विंग द क्वेश्चन मोर देन 80%, मोर देन 90%, मोर देन 100%। अब उनको मेरा करना होता है मेरे अपने जो हमारे प्रमोशन के लिए जो हम पोस्ट पे काम कर, उसमें मुझे लर्न करना होता है। उसके बाद इस बच्चे को आप पढ़ेंगे तो किसी कंपनी का CEO होगा, ठीक है। तो एक अच्छे कॉलेज का ये बेनिफिट होगा, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना होता है। ये स्टेप्स है, हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद टेस्ट होती है। बच्चों को कुछ नहीं, ये गारंटीज हम लोग लेते हैं कि एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं तो सिर्फ इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करना जो सिस्टम है, हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट होती है। और मैंने कहा फाउंडेशन लेवल बुक्स खत्म होने की, यू कैन सॉल्व द फ्रॉम एनीवेयर एक्सेप्ट कैट क्वेश्चन, उसमें भी 60% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। और कैट क्वेश्चन के लिए फिर लेवल 2 हमारी बुक्स होती है, उस पर वर्कआउट। इधर मैथमेटिक्स साइड, रीजनिंग साइड, इंग्लिश साइड, सभी में हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़। पहले ही मैंने बता दी, मैथमेटिक्स अच्छी होगी, थोड़ा लॉजिकली होगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मेथोलॉजी पे काम करते हैं, और कोई 5 मंथ में, कोई 6 मंथ में, कोई 8 मंथ में, ठीक है, आसानी से क्या होता है बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। मैक्सिमम 12 मंथ है बच्चे का सिलेक्शन। थोड़ी बच्चे को भी आप लोगों ने बताया भी है कि बच्चे में थोड़ी सिंसियरिटी होनी चाहिए, बच्चे सिंसियर होना चाहिए, बच्चों को मेहनत करना है। अभी आदर्श बताया था कि हैव टू डू द वर्क, इफ यू आर डूइंग द वर्क ऑफ द 1 आवर डेली, तो मस्ट हैव टू डू रेगुलर मोड्स, नॉट कि आपने 3 दिन पढ़ा, 2 दिन फिर छोड़ दिया। आप, तो बच्चे आपको 1 घंटा कंपलसरी है, आप चाहो तो उसको 2-3 घंटा एक्सेलरेट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटा थ्रू आउट चाहिए जी, क्योंकि आप तो सुबह ऑलरेडी आप हमारे स्टूडेंट्स भी रहे हैं, और एक अच्छे जगह पे भी हैं, आप बहुत अच्छे जगह पे हैं। और आप जानते होंगे आपके बैच में जितने लोग क्लैट के हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे, आजकल तो एक आपका स्टूडेंट्स है वो कैमूर में है ना, वो लॉयड भी है, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, चाणक्य लॉ कॉलेज से सुदर्शन, और बच्चे लोग अलग अलग जगह सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यही रहा है। तो सभी हमें पर्टिकुलर कुछ लोग कहते हैं ये कोर्सेज, अपने यहाँ सभी कोर्सेज में देखेंगे वही सेम रिजल्ट है, मोर देन 80%, 85%, 90%। अभी इसी में कैट में आदर्श का हुआ है, स्नेहा का हुआ है, ऋषभ का हुआ है, ठीक है, सबका कैट में हो गया, ठीक है। और इस तरह IIMs में उनकी सिलेक्शन हो चुकी है फाइनली। अब सब बच्चे लोग आएंगे, उस तरह से वर्ड निकल कर हम लोग मुलाकात भी करवाएंगे, ठीक है। इस तरह से मेथोलॉजी है। थैंक यू। थैंक यू राजेश सर, आपने बहुत ही बेहतर ढंग से बच्चों को बताया कि किस तरीके से जो है हम क्रैक कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को। और सबसे बड़ी बात होती है कि टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन होता है वो बेहतर होना चाहिए। सो एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, सो आई वुड लाइक टू आस्क आदर्श एंड फाइनल, आई वुड नॉट लाइक टू आस्क हिम बट आई वुड लाइक टू गाइड हिम, द न्यू एस्पायरेंट्स जो हमारे आने वाले समय में जो कैट क्रैकर्स होंगे, या जो भी बच्चे हैं जो कैट को एस्पायर कर रहे हैं, दैट दे वांट टू क्रैक कैट, सो व्हाट इज योर मैसेज फॉर देम, दैट हाउ कैन दे वर्क सो दैट दे कैन आल्सो अचीव the same that you have done? One is the written examination, okay, CAT exam. Second, you can tell about the GDPI, कैसे आप improve कर सकते हैं। अभी तो बिगिनर की तरह बताना आप। या सर, शुरुआत से ही बताना चाहूँगा। जब याद है सर हम लोग शुरुआत में मिले थे, तो मेरा सबसे बड़ा फियर था इंग्लिश को लेके, क्योंकि मेरा भी 12 सर बिहार बोर्ड से ही है, एंड आई एम नॉट दैट ऑफ गुड इन इंग्लिश एट दैट टाइम। तो मेरी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे को हमेशा VARC का डर रहता था कि उसमें क्या होगा मेरा, कैसे मैं उसको क्लियर कर पाऊँगा। तो इंग्लिश आपको बस कोई भी, इवन मैं पहला तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज किसी चीज़ के लिए बैरियर नहीं होता है। आपको अपने थॉट प्रोसेस के साथ में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मेरा अगर कॉन्सेप्ट सही है तो मैं इस चीज़ को निकाल लूँगा, मैं इस चीज़ को क्लियर कर लूँगा। वहाँ पे आपके लिए लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं हो सकता है। और आपको जैसा इंक्लूडिंग IIMs, आई कांट टेल यू द नेम, बट इन द मेनी ऑफ द इंटरव्यू आई हैव सीन फैकल्टीज डिस्कसिंग इन हिंदी ओनली। वो हिंदी में इवन पूछ रहे हैं, वो हिंदी में पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट होता है कि हाँ, मेरे को बंदे में ये चीज़ चाहिए होता है। उनको बस उस चीज़ पे, पैरामीटर्स पे देखना होता है। और अगर आपसे वो इंग्लिश में संतुष्ट नहीं हुए तो वो आपसे हिंदी में पूछेंगे,
और आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज रहा कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दे आर सो ब्रिलियंट एंड दे उनको मतलब सारे नॉलेज में महारत हासिल होता है फैकल्टीज़ को, वो सारी चीज़ में बहुत वेटर जानते हैं। हाँ, और इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आपको जो है सो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि आप अगर 20 स्कूल में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और आप अपने आप को 5 साल के बाद और 10 साल 15 साल के बाद में कहाँ देखते हैं, हाँ, कहाँ देखते हैं, ये चीज के साथ में आपको क्लियरिटी होना चाहिए। कोई बच्चा हो सकता है कि कोई देखेगा कि नहीं हमको सीईओ बनना है 15 साल के बाद, वहीं दूसरा बच्चा होगा कि वो देखेगा कि नहीं मेरे को अपना कंपनी चलाना है। तो ये चीज़ के साथ में क्लियर होना चाहिए, और ये नहीं कि हमको अपना कंपनी चलाना है, आपको पूरा का पूरा पाथ क्लियर होना चाहिए कि किस वे पे हम कैसे ये चीज़ करेंगे, 5 साल बाद कहाँ होंगे, 8 साल बाद कहाँ होंगे, 1-2 साल वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप पूरा अपना ट्रैक से डेविएट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आल्सो द आस्किंग ओके व्हेन आप लोग तो ऑलरेडी आपसे भी पूछा गया होगा, एक फॉर्म देती है उसे मेंशन करना होता है, so why are you interested to do the MBA? Right, sir. Okay, what do you it is statement of purpose. It is I have to write in the words 30 words, 50 words, 60 words, 100 words. Yes, sir. Yes, sir. उसमें लिखना होता है कि अपने और वो टेस्ट करती है IIM सर कि आप क्या सोचते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं। कुछ कॉलेजेस ने अब SOP वीडियो मांगने लगे हैं, और कुछ कॉलेज का रहता है एक सेट ऑफ कि इतना कैरेक्टर इतना वर्ड में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, आपका आज तक की ज़िंदगी का क्या उसमें अचीवमेंट है, आप इस कॉलेज को ही पर्टिकुलरली क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ से आपकी लर्निंग कैसे आप उसके बाद एक और चीज़ इसमें मैटर करता है कि अगर आप इस कॉलेज के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आप कैसे पूरे क्लास को वैल्यू ऐड करते हैं। द थिंग पीयर लर्निंग यहाँ पे मैटर करता है, उसके बारे में डालिए। फिर आपका आगे का विजन क्या है यहाँ से 5 साल के बाद निकलने के बाद, यहाँ से 10 साल के बाद निकलने के बाद में, तो ये पाथ आपको क्लियर होना चाहिए। पूरा का पूरा MBA कॉलेज जो है सो आपका MBA कॉलेज कुछ नहीं, बस देखने का नज़रिया बदलता है। द वे ऑफ परसेप्शन टोटली मैटर्स। तो इसमें कहीं से भी आपका हिंदी और इंग्लिश का वो जो लैंग्वेज बैरियर होता है वो मैटर नहीं करता है। हाँ, आपको थोड़ा कम्युनिकेशन पे अपने वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, बट वो उतना ही ज़रूरी होता है, आपको इतना ही कम्युनिकेशन आना चाहिए कि आप अपने मन की बात को सामने रख पाएँ। दिस मच ऑफ इंग्लिश इज वेरी मच सफिशिएंट, nothing else needed in CAT preparation and any of I think B school preparations. Sure. And if we talk about VARC, then VARC is kind of practice. आप जितना ज़्यादा मॉक्स देंगे, पहला तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा, जिसमें कि राजेश सर पूरा का पूरा वो आपको इनका पूरा का पूरा सेशन है, पूरा का पूरा आपका सेट ऑफ वो नोटबुक पेपर्स वगैरह सारा चीज़ है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस पेपर लीजिए, मॉक लीजिए, और बस प्रैक्टिस करिए कंसिस्टेंट वे में। आप इजीली उसको VARC पार्ट को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट तो स्टूडेंट को गोल ये होना चाहिए ना, हाउ टू गेट द 100%। Yes, sir. How to get the 100%? Yes, it's a written skill. You know very well how to communicate English, but you don't. You have not got a good percentile. Okay, that's the 80%. Just 60 percentile, 40 percentile. Right. फिर communication का कोई मतलब तो है नहीं. Right. सबसे पहले how to get the 100%. Yes. Okay, how to get 100% तो 99 ला होगा, 95 ला होगा, तो टॉप कॉलेज के लिए कट ऑफ हो गई। और जब टॉप कॉलेज के लिए कट ऑफ हो गई, देन कम्युनिकेशन स्किल। अभी से आप जैसे RC पे वर्कआउट करते हो, लॉजिकली आपका करंट टॉपिक पे वर्कआउट करते हो, द हिंदू एडिटोरियल पे वर्कआउट, तो आपका एक डेप्थ ऑफ नॉलेज तो होती ही है। अब मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी तो आ ही जाती है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पे जो बिगिनर बच्चे हैं उनकी कॉन्सेप्ट बहुत जरूरत है। बिगिनर्स शॉर्टकट नहीं, इट इज़ द इंडियाज टफेस्ट। देखो UPSC CAT ये टफेस्ट एग्जाम है, तो आप UPSC के बच्चे से अगर आप कोई हिस्ट्री के बारे में पूछे तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन को रिप्लाई दे देंगे। पॉलिटी के बारे में वर्ल्ड वाइज तो उनका क्या होता है, जीरो से लेकर टफेस्ट तक जानना होता है, जीरो से एंडिंग तक जानना किसी टॉपिक के बारे में। सेम चीज़ कैट मैथोलॉजी में, उनको क्या है, किसी टॉपिक में रिसर्च मतलब लास्ट टफेस्ट क्वेश्चन था, और लास्ट में जो कैट में क्वेश्चन थोड़ी एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड होती है। तो एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड अगर क्वेश्चंस हैं तो थोड़ी मैथमेटिक्स और थोड़ी रीजनिंग के स्किल को डेवलप करना है, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए आपको ये करना कि कैट के अगर स्टूडेंट्स हैं, एनीबडी आस्किंग द क्वेश्चन, इट इज द बैंक PO, यू कैन आस्क टू मी। सेकंड पर्सन पूछा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ UPSC, यू कैन आस्क टू मी।
ओके, इट इज द क्वेश्चन वैसे से यू कैन आस्क मी, कुछ भी बच्चा कुछ भी पूछे, इट इज द क्वेश्चन ऑफ क्लैट, यू कैन आस्क मी। जो हमने पढ़ा, हम लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप मैथ पढ़ रहे हैं, जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं यू कैन आस्क मी, ठीक है। क्योंकि आपको इसीलिए तो बच्चे, आप देखो इतनी बड़ी कंपनी में आप जितने टॉप लेवल पे पूरे वर्ल्ड वाइज कोई भी लोग काम करते हैं, वो क्या है भाई, बीटेक MBA, बीकॉम MBA या और अदर कोर्स में। अभी मैं कुछ दिन पहले मर्सिडीज़ कंपनी का जापान में उसके मैंने उनका पढ़ रहा था ऑटो सेक्टर के बारे में, तो इंडिया में अभी बता रहे थे कि बहुत ग्रूमिंग है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में ऑटो सेक्टर इंडिया में। तो वो बता रहे थे कि आई एम अलोन, ओके, माई बैकग्राउंड वाज नॉट बीटेक, ओके, अब मैं यहाँ तक पहुँचा, इतने टॉप लेवल तक पहुँच गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि उनकी थॉट्स होगी, उनके वो सोच लॉन्ग टर्म सोचते हैं कंपनी कहाँ पहुँचेगी, किस तरह से कंपनी को डेवलप करना है, इस तरह। तो बच्चे को खूब मेहनत करना है, अपने आदत डालना है, खूब टॉपिक पे एक्सलेंट बनाएं और टॉपिक एक्सलेंट करते हुए उसे करें, और ये सब हम लोग करते हैं। उसके बाद टेस्ट देते रहें, फिर एंडिंग डे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। हम लोग फर्स्ट डे ही टॉपिक जैसे एंड करते हैं उसी दिन दिखाते हैं ये कैट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये देखो ये क्वेश्चन 2022, 2021, 2019 वो क्लास में ही पूरे करके सॉल्व कराते हैं। बच्चे को मेहनत करना और अच्छे टीचर से पढ़ना, यही 2 चीज़ें। ओके, थैंक यू। So what we get from this is that concept learning is the most important thing. Right, if you have a proper concept in any of the thing, no exam is a barrier, right, no barrier can hinder your path towards your success. So with this, I would like to thank Adarsh and I would like to thank Rajesh sir for being here, and Adarsh, congratulations to you again and hope for your best future. Right, thank you all, have a good day.